चलो भाई लंघ क्या चाल है चल सुमित लंघ ले आज इस वडभागे दिन मैं साफा जमीन ते ला के ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। संजीवनी वाला मुद्दा है। मेरी गल भी 25 मिनट की ध्यान ना सुनो। अज कोई यह जी गल नहीं जी संजीवनी वाली ना हो। इस करके मौके को समझना मैं अज पंजाब की किसानी दियां मुश्किलों चो उन्होंने घूमन घेरी किसानों को बाहर कढ़न आया सीधे तौर पर वो हल देन आया जो पंजाब सरकार ते पंजाब के
ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਊ, ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲੂ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਜੂ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਜੂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਰਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਕਿਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਂਚੀ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੂਈ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਬੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ।
ਅੱਜ गेम की चलन रही है। पहले ये समझ लो भी ये गेम चलन की रही है, इन्हों ध्यान नाल समझो, मैं समझा के जाऊँ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ उत्पादन वाला सैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ते सर्विस सैक्टर, ये घाटे चलन दिया। ये सरकार सेंटर की ऐसी कसूती है, 23% GDP की हर चीज घाटे, सिर्फ किसानी के झंडे से डंगा लगा। और किसानी की जी इनकम है वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री करोड़ों की इनकम जी है, ये अंबानी ते अडानी की जेब च पाउण दी इन्हां दी सलाह है। ये गेम चलन रही है रिमोट कंट्रोल नाल अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दी किसानी नूं मार के पंजाब दी किसानी दा मुनाफा ये चंद पूंजीपतियां नूं देण दी इन्हां दी पूरी अख है और काली अख। मैं थोड़ी नजर केंद्र दे खेती मंत्री तोमर दे वल करदा। तोमर दी मीटिंग ਜਿਹੜੀ नीति आयोग ਜਿਹੜਾ अपना पंजाब का प्लैनिंग बोर्ड है ना, उसका नीति आयोग है, यदि बॉम्बे ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 20 साल के कंट्रैक्ट करांगे, 2 एकड़ वाले को अड पैसे देंगे, अड रेट देंगे, वकील वकूल के लोग है नहीं, तो 10 एकड़ वाले को अड देंगे, 1000 एकड़ के इकट्ठे फार्म बना के जमीनों से कब्जा करना। साडी मां के आंचल में हाथ पावांगे तो हाथ ला देंगे, याद रखो, हाथ ला देंगे। कोई तारी मारने की लोड़ नहीं है, वट कर दूं, जलेबियां को इकट्ठा कर दूं, सारे इन्होंने कोर खोल दूं, मैं पर्दे इन्होंने फाश कर दूं। ये भावना इन्हों की, ये खोटी नीयत है इन्हों की। अज जे कोई फैक्ट्री वाला बड़ा जरा दिल्ली वाला देखे ना तुम, अंबानी अडानी, हाँ वाह देखने वाले हवाई जहाजा तो थले नहीं उतरते, पैर जमीन से लगते नहीं। जे इन्हों की फैक्ट्री को पोल्यूशन करती है ना, पोल्यूशन करती है ना, वो टैक्सां की छूट देंगे हैं, टैक्सां की छूट लो। अज सेंटर की सरकार जाके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड़ दे कि नहीं छड़ते? टैक्सां छड़ दिया। जिन्ने बैंक देश के सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता। जो कोई किसान जाता ना कर्जा लैन बैंक के फार्म नहीं भरिया जाता, 10-10, 20-20 करोड़ का नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढमकाना मोदी बैठ के बड़े बड़े की गोदी फुर जाते बाहर। इन्होंने एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया, ये देश का खा के 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सां की छूट। ते जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर देऊंगा जेल। जदों सरकारां उन्होंने लोगों को सदा देन लग जान जिन्होंने वोटा पा के जिताया, जदों सरकारां बदले के उत्ते आतुर हो जान तो समझ लो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू होगी, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट होगी। दुध नूं भट्ठी के उत्ते रखो तो दुध का उबलना निश्चित। तो जो किसान के विच रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सरकारां का उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। तो मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले को शुरू करता है। दुध का दुध कर दूं, पानी का पानी कर दूं। कोई कहता जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च पोल्यूशन होती है, कोई कहता जी नहीं होती। मैं इस वाद विवाद च पैंदा ही नहीं। पंजाब के पिंडां दे विच ते पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली तो बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब के किसानों नूं पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इंसेंटिव दिते जान, वो पराली भी ना फूकण ते उन्हां दी आमदन भी वधे। तुसीं कोई ऐसा इंसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे, आवो पराली फूक सके। जब तक सरकारां पराली के मसले दे विच किसान के मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान की बांह नहीं फड़नगियां तब तक वो पराली फूकण के मसले ते
केंद्र ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लैके आया कि पराली फूकण ते सजा दे देंगे, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नूं पूरे पंजाब में किवें लागू किया जाए ये उत्ते कोई कदम चुके दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करो पानी का पानी। सरकार हैप्पी सीडर तो दे देंदियां ने, हैप्पी सीडर दे देंदियां तो सबसिडी भी दे देंदियां ने, पर करजाई किसान 1-2 एकड़ वाला किसान कित्थों ट्रैक्टर लैके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसने सोचा वो कित्थों तेल पाऊ डीजल पाऊ जो पहले ही करजाई है? ये किसने सोचा? इस तो चंगा तो किसान सोचता है कि अगी ला दो, वो मजबूरी च फूक है पराली, मजबूरी। केजरीवाल साहब वो आके कहते जी कि पराली को अभी खाद बनावांगे, बिल्कुल बना सकते महाराज, बिल्कुल बना सकते। उन्होंने 1-2 खेतों के जाके उत्थे खाद दी भी है, पर दिल्ली तो 4 खेत है, किसानी है ही नहीं उत्थे, किहड़े खेत ने, खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार तो अज तो 2 साल पहला ही पराली तो बायो CNG बायोचार ते होर बायोफ्यूल बनाने का उपराला लैके आई है। ਉਹਦੇ प्रोजेक्ट भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, पर वो पंजाब की पराली का सिर्फ 5% हिस्सा है, सिर्फ 5% हिस्सा पंजाब की पराली का। पराली के होर भी बड़े हल होंगे ने। किसान तो पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं, मैं सब समझदा भी किसानों को पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए ने मैं उन्होंने भाषा के विच ही उन्होंने समझा देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचता है ते ऑक्सीजन छड्डदा है, उसका शरीर कार्बन का बनया होया, इसलिए पराली की कोई भी खेती वेच, पराली होवे या कोई भी खेती वेच, ये नैचुरल कार्बन का स्रोत है, नैचुरल कार्बन का। ये तो बायोचार बायोगैस बायो CNG मनोर पराली के कार्डबोर्ड वो प्लेटा जड़ियां रीसाइकल करी दी ने, चिमचे अं सब कुछ बना सकते, पर मुश्किल यह है कि सरकार सजा देने तो मूहरे होंदियां ने, पर किसान इंसेंटिव देने वेले किसान की बांह फड़न वेले पिछे हो जांदियां। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे से शुरू होता है, दशहरी से आर्टिकल भी लिखेंगे फलाना होगा, फिर जो दिवाली दी ठंडिया हवा आउंदियां ना पश्चिम चो, उदों ये पराली का मसला घुट जाता है। लीडर भी मिट्टी पा देंगे ते मीडिया भी मिट्टी पा, मैं छाती ठोक के कह रहे हैं इस गल ना तो पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होंगी है, ना चिंतन होंदा है, ते ना ही उन्होंने हलों को पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्होंने हलों बंद कमरिया के विच नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने आना हलों दिंदा। ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियों के फायदे वास्ते नहीं, आम किसान के फायदे के वास्ते नहीं। पराली ते मेरी मांग है कि पंजाब सरकार किसानों वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जाए। पराली तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पहले तो ही मौजूद है। ये कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार बायो CNG मनोर। पराली साडे पंजाब के किसानों को खुद मुख्तियार भी बना सकती है ते अज किसान कोल एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उहदे कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। ते अडानी साहब हिमाचल के सेब लैके कोल्ड स्टोरेजां दे विच रख के 4-4 गुणा 3-3 गुणा के उत्ते बेचते। क्या पता कर लो, हिमाचल का सारा फिर खरीदे सेब उहदे विच रख लेंदे आ ते गरीब किसान दे कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है।
खर्चने दे। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰ ਨਿਗਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ MSP ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੀ ਵੀ 1850 ਹੈ, 600 ਚ ਚੱਕੀ ਹੈ ਮੱਕੀ, 800 ਚ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ ਦੋ ਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੇ ਕੱਲੀਆਂ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10-15 ਲਾਉਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਹੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ PDS ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਗਾਈਏ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ, ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ, ਫੇਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਂਹ ਹੀ ਰੱਖੂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਚੱਕ ਲੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 1 ਕਿਲੋ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ 5377 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5377, 14 ਬਿਲੀਅਨ 1400 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ SYL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ? ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਦੇਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਗਾਵੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਲਾਂ ਲਾਈਏ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਫਰੂਟ ਲਾਈਏ। ਕੱਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਬਣਾਈਏ।
नाले पंजाब खावे तो नाले एक्सपोर्ट करिए। जे केंद्र के कानून लागू हो गए तो इसनू करने वास्ते साडे कोल घट तो घट इहदे खिलाफ लड़न वास्ते साडे कोल घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल है। ये याद रखियो कि जे फसल खरीदनी बंद करनगे क्योंकि हुण ते गोदामां दे विच रखो अनाज नहीं ते साडे कोल तैयारी दे लई घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल। अज पंजाब दाल ऑयल सीड सब्जियां अपना खुद इंपोर्ट करके खाते हैं। दाल बाहरों आउंदियां ने सैकड़े करोड़ां दीयां दालां अज असीं बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा दाल स्कीम के वास्ते भी दालां बाहरों आ रही ने, आपां बाहरों मंगाउने हैं। देश भर में वध रही शहरी इनकम ते अन्न की डिमांड के बदलाव ने हुण प्रोटीन रिच ऑर्गेनिक अनाज कणक जीरी नूं छड्ड के दूसरे अन्नां की डिमांड है। पर इस राह वल ते सानू किसी ने तोड़िया ही, सानू किसी ने तोड़िया। कहते ने ये करना बहुत ही मुश्किल है जी, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। ना तो इन्हां दे MSP है, ना ही कोई सरकारी खरीद है, ना तो चंगे बीज मिलते हैं ते ना ही किसान नूं बिजाई ते बेचण विच कोई मदद। कदे किसान की फसल नूं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की घाट मारती है ते कदे खरीददार नहीं मिलता। इस समस्या का हल तो हुण सेंटर कोल ते है। कब तक सेंटर का मुंह देखी जावांगे, कब तक लिबड़ियां कटी जावांगे। गुरु साहब गुरु नानक देव जी पातशाह वो कह गए अपन हथी अपना आपे ही कार संवार ते संवार सकते हैं। अज पंजाब का हर किसान किसान यूनियन किसान यूनियन पंजाब की हर पार्टी ते हर पंजाबी एक होके किसानों के नाल खड़ा ते अज तो बेहतर इस खुद मुख्तियारी की राह ते चलण का कोई अवसर नहीं आ सकता। सावन का चूकिया किसान ते वक्त का चूकिया इंसान हमेशा पछताउंदा है। 1 तो 3 साल पंजाब की किसानी अपने आप पे यकीन करे, अपनी ताकत पे यकीन करे। अमरीका बसाउण वाली किसानी, कनेडा बसाउण वाली किसानी वो हल दे सकती है। पंजाब की किसानी का असल हल सानू पंजाब के विचों ही कढ़ना पैना है। केंद्र वाल देख के कुछ नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आउंदे आ कि असीं की करदे आ। मैनूं पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की पंजाब की ताकत हथिया रही है ते असीं स्टेट की सरकार किसान यूनियन रल के वो ताकत वापस खो सकते हैं। ये मेरा यकीन है, मैं मनदा इस गल नूं। अज लोड़ है कि आपां पंजाब की बदहाली तो खुशहाली वाल दी राह किसानी के लिए लिखिए कि अपनी बाहर जा रही जवानी, बाहर जा रही जनरेशन वापस आके इस किसानी को अपनावे। ऋग्वेदों तो चलती है साडी किसानी। अज पूंजीपति पंजाब के किसान नूं, पंजाब के खेतों को धन दौलत वांग देख रहे हैं ते सानू इस करजाई खेती के मॉडल में फसाया जा रहा है। दलदल है, जिन्ना फसांगे उन्ना डूंगे जावांगे, जिन्ना निकलने की कोशिश करांगे उन्ना ही बाहर नहीं निकले जाओगे। केंद्र के लिआंदे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को हराउण वास्ते तुहाडे सामने पंजाब स्मॉल फार्मर छोटा किसान, पंजाब स्मॉल फार्मर मॉडल रख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। पंजाब सरकार खेती को लैके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना सकती है। अपना हथी अपना आप ही काज संवार सकती, कानून बना के, पॉलिसी बना के। अज केंद्र सरकार सानू गुलाम बनाने की गुलाम बनना चाहते हैं। पूंजीपतियों के हाथ के गिरवी रख रही है। सानू लुटन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया ते अडानिया। ते मैं कह रहा कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते लड़ाई है साड़ी। असीं कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने संपर्क जब टुटता है आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता, संदेह के उत्ते आत्मविश्वास
विश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मिर्ग का जंगलों च भटकदा है, उस खुशबू नूं लभण जिहड़ी उहदी आपदी नाभि चों आउंदी है। असीं अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडां विच मैनूं कोई दस दे भी पंचायत तो इलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज़ बुलंद करदा, मैनूं कोई दस। इसलिए मैं अर्ज करदा हाँ कि किसान यूनियन पहल करन, हर छोटे तो छोटे किसान का हक आपां कोआपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाई को बड़े बड़े वकील ने कितने लड़ूगा 2 एकड़ वाला किसान, कितने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वाल वंड वंड के 2 एकड़ वाले अड रेट 10 एकड़ वाले अड रेट कितने आ करनगे। असीं एक कानूनी इकाई बनाइए, सिंगल लीगल एंटिटी बना के कोआपरेटिव बना के, जिस बीचण का ते बेचण का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोआपरेटिवां की जिहड़ी सफलता है, यह छोटे किसान की सफलता है, यह साडी 90% किसानी की सफलता है। ते केंद्र के लागू किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता, मतलब 1-2 पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारां नूं नचाउंदे आ, जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ ते गाना भी गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल। अगे पता ना की है ना, नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ, नीतियां बनाउंदे, 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ, बैंक लुटदे आ 18-18 लाख करोड़ रुपया। ते जदों किसान नूं 4 पैसे देने होंदे कहंदे सबसिडी, ते जदों इन्हां नूं ओह लुੱਟ छड्डनी हुंदी है ते कहंदे इंसेंटिव। वाह तेरे ये इन्हां दीयां पॉलिसियां ने। ते ये राह जे सफलता की असीं उलीकी, ये राह सानू उस खेती वाल लैके जाती है जिथे हर छोटे किसान नूं पूंजीपतियों तो बचाया भी जा सकता है ते एग्रो इकोलॉजी नूं भी बचाया जा सकता है। एग्रो इकोलॉजी की है, पवन गुरु पानी पिता माता पिता महत, ये एग्रो इकोलॉजी है। धरती पौध पानी किसानी जवानी ते पानी ये बचा सकते हैं। ये राह भी की जा सकती है। इस नूं लागू करन दा पहला कदम यह है कि पंजाब सरकार एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी बनावे। मार्केटिंग स्ट्रैटजी जो छोटे तो छोटे किसान दे हक पूरे करने वास्ते एक ब्लूप्रिंट होवे, एक प्लान होवे, एक राह होवे जिहड़ी सारे नूं पता होवे। अनाज नूं बीजण तो लैके उहदी खरीद तक, ट्रांसपोर्ट तो स्टोरेज का मॉडल होवे ते खेती का सारा मुनाफा वापस किसान के कोल आवे, पूंजियां पतियां कोल ना जावे। अज पूंजियां पतियां कोल होल्डिंग कैपेसिटी है, उहते आते बड़े बड़े स्टोर ने, उन्होंने को 2 किलोमीटर के स्टोर ने, एसी लगे हुए हैं, वो फल छड्डते हैं, वो ब्रीज हो जाता है 200 रुपए बेच लो, 100 गुना दाम से बेच लो। इन्होंने कानून लिख के दिता उन्हें कि 50 गुना बेच लो चाहे 100 गुना बेच लो, किसान का दिंदा जिहड़ा रेट ये विचोलिया बन के 100 गुना 150 गुना बेचते हैं। होल्डिंग लेजिटिमाइज करती, लीगल करती, तुम 100 गुना बेच सकते। इसे करके जितों सेब चुकते हैं कौटियां के दाम से चुकते हैं, तो फिर पता नहीं कितने कितने बेचते, विदेशों में भेजते। किसान के कोल मैनूं दस दो एक दिन की भी स्टोरेज कैपेसिटी हैगी है, इन्हां कोल मार्केटिंग कैपेसिटी है, दुकानां ने, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, पर किसान को फसल रखने की कोई क्षमता नहीं। जिवें पहला कहना पंजाब सरकार को कोल्ड स्टोरेज बना के किसान का हक फड़े, हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज होवे। अज लोड़ है कि किसान को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होवे कि वो सरकार नाल मिल अपना अनाज स्टोर कर सकन ते जद चाहण MSP ते या MSP तो ऊपर अपना अनाज बेच सकन। सरकार किसान को खुद गारंटी देवे MSP की। जे कोई पंजाब की किसानी नूं इस घटदी आमदन वध रही लागत ते किसान नूं इस लगातार घट रही उपज के चक्कर चों बाहर कढ़िया जाए, किसान नूं बचाया जाए, आड़तीआं नूं बचाया जाए। कित्थे जांदा किसान जे उहनूं रात नूं किते लोड़ पैंदी 10,000 आड़तीए को लैंदा। जिहड़े किसान की आमदन वधू वो आड़तीए दी भी ते कमीशन वधू। ते जिहड़ा मंडी मजदूर है, पल्लेदार वीर मेरी पग वर्गे बैठे इत्थे, उन्हां दी भी तां जिहड़ी दिहाड़ियां वधू। ते जे इन्हां ने आपदे कोल्ड स्टोरेजां दे विच माल रख के 100 गुणे वध बेचना है ते भुख मरी आऊ। मैं दसदा भुख मरी आऊ। भुख मरी इस करके नहीं आउंदी अनाज मुक गया, अनाज हुंदा
अंबानी ते अडानिया दे गुलामां च हुंदा है, पर वो गरीब की पहुंच तो परे हो जाता है, गरीब की खरीदण की ताकत तो वो परे हो जाता है। इस करके भुखमरी आउंदी है, इस करके इन्फ्लेशन आऊ। जिहड़ा दिहाड़ीदार पल्लेदार बेचारा 500 रुपये दिन दे कमाउंदा, उसकी वैल्यू 200 रुपये रह जानी है। जो 500 च खरीदा सी वो 2000 च नहीं खरीदे जाना। मैं तुहानूं टका के कह रहा, इस करके इस आने वाले खतरे को आप टाल सकते हैं। ये ठाठा माता कठ इस गल का प्रमाण है कि तुसीं चिंतन कर रहे हो, तुसीं सरकारां नूं सही राह पा सकते हो, क्योंकि लोगों की ताकत नालों वड्डी कोई ताकत नहीं। और मैं अज तुहानूं टका के कह रहा कि इस नूं करने वास्ते केंद्र सरकार की कोई लोड़ नहीं। पंजाब की किसानी की हर मुश्किल का हल कल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी में इन्वेस्ट करे, 4 पैसे लाओ तो सब कुछ आसानी नाल हल हो सकता। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन, कला झोना जीरी क्यों लाती है, होर कोई पौधा क्यों नहीं लाता, क्योंकि मैं एमएसपी लो के दिया। जब दशकों तो रिपोर्ट बनी है, यूनिवर्सिटियों के पई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते आ लाओ जी आ लाओ, क्यों कि जीरी कणक नूं छड्ड के किसी होर फसल ते सरकार कोल एमएसपी का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है, प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं होर किसी फसल के वास्ते। देख लो मक्की 1800 रुपये की एमएसपी है, बिकदी 600 च, कोई 800 च खड़े तला। पंजाब में जे एमएसपी ते सरकारी खरीद की गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का यह मॉडल बनाया जा सकता है कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार, जी 3 करोड़ की साडी आबादी है, उसकी जरूरत अनुसार खेती ते सरकार खरीद करे ते किसानी की सारी मुश्किल हल हो सकती है। जो आप खाने पाइए कि जो 3 करोड़ पंजाबी खांदा वो इत्थों आउंदा, बाहरों आउने सारे सब्जियां फ्रूट दालां। ये किसान है जिन्हें सारे हिंदुस्तान का नहीं बनता पेट भरे कि साडी ये हालत हो जू। मैनू पूरा यकीन है वीरो, मैं खत्म कर रहा और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि ये जिहड़ा इकट्ठ है अज होया, ये गूंज इहदी धमक सारी दुनिया जाऊगी। और मैं तुहानू यकीन दाना पूरा यकीन कि पंजाब के लोग इन्हां हल्लां नूं ताकत दे विच लैके आउणगे, लागू करनगे ते पंजाब की किसानी नूं, पंजाब की जवानी नूं खुद मुख्तियारी की राह के उत्ते लैके आउणगे। पंजाब एकता जिंदाबाद। असीं तगड़े करांगे, इकट्ठे आ पंजे उंगलां कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, जो इकट्ठी हो जांदियां आ वेखो बंद मुट्ठी लख दी ते खुली कख दी। इस करके सब नूं चाहीदा भी उंगलां ने चक्कण एक दूजे दे, इकट्ठे होकर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद। ये चैनल बनाना साडा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जे असीं अगे बढ़ांगे तो कोई दुनिया की ताकत सानू हरा नहीं सकती, सानू झुका नहीं सकती। अंबानी अडानी के की चीज ने कहते बड़े बड़िया तो नहीं दबे। एंड करता मैं फिर जो सिद्धू वाली शेर नहीं सुनाया, शेर सुना देना हम तुम ताड़ी भी मार लियो, मैं जयकारा भी ला दो, क्योंकि गल ना हले नहीं तो शेर सुनोगे आपे वजू। देखियो ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये पंजाबियों दी नजर ने, ये गुरु साहिबाना दी संतानां दी नजर ने, ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने, या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई। करके एक बार खड़े होकर हाथ खड़े करो, पता लगे दिल्ली तक, पता लगे। आप देखो मैं संदीप सोनू शैली जिन्ने भी काउंसलर मेरे आए हैं, मेरे वीर चीना सारे पितर किन्ने भी सारे जिहड़े खड़े सब का धन्नवाद करदा। तुसीं मेरी साफे दे ला लो और तुसीं ये इकट्ठ करके अज दस्सिया कि किसान
ईमानदार बंदे दे नाल खड़ा है, किसान हमदर्द दे नाल खड़ा है, किसान अपनी राह निकली जांदा है पंजाब दा। और जेडे पंजाबीयत ते वार करदे हैं उन्होंने कहने कि पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे तुरां दे नाम, पंजाब जीवे तुरां दे नाम। शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं और इसमें जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मरदा मरजू, मैं कहना मरदा मरजू, पर अडानी ते अंबानी नूं पंजाब दी इस पाक धरती ते पैर नहीं करन दूंगा जब तक मैं जिऊंगा, नहीं करन दूंगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर सफा लऊं, पासे हो भाई, तू भी पासे हो। मैं फिर सफा लऊं, मैं चीफ मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, मैं प्राइम मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, पर पंजाब दे लोकां दे अगे मैं झुकना। और मैं पंजाब दे लोकां नूं रब की आवाज मानना, आवाज़े खलक लगाना, खुदा जनता की आवाज, परमात्मा की आवाज है, एक कंठ प्रमाण है कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठूगी और जुल्म नूं पछाड़ूगी। अते पहला नहीं कह दो दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते, खुददार कहते। आओ तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर गोडे ला के करूँ। थोड़े चरणों के विच मैंने गुरु रामदास पातशाह दे थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आंदे साफे किसानी नहीं मरनी, किसानी साडी पछाण है, कि साडी आन पान शान है। ते कौन कहना कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है। इनू कोई बंदा जे बाहरियां ताकतां दे नाल जोड़ के खराब करने की कोशिश करूं ते सिद्धू छाती लैके देखदा। करके नारा ला दो, फिर मैं जाना। मित्रों जब आवाज मारोगे तुमने बुलाया तो हम चले आए, जान हवेली पे ले आए। इस करके आप हम खूने वाला नारा लोगों की ताकत तो बिना मैं की हाँ लो थोड़ी बाबा उरिया उरिया बाबा बाबे दो मुंडा भी दे दो भाई किसान भरा बन दे किसान
अंकुश 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 पुलटा ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੱਛੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆਓ